नेक्स्ट कम्स योर फिजिकल प्रॉपर्टी। बेटा मैंने आपको बताया कि रिगार्डिंग द फिजिकल प्रॉपर्टी दैट लोअर अमीन्स आर गैसेस एंड लो बॉइलिंग लिक्विड्स। जानते हो ना, अगर छोटा अमीन हो तो मिथाइल अमीन, इथाइल अमीन, दे मे बी गैस और लिक्विड। व्हेन दे चेंज so it becomes solid. You know this, okay? From the beginning we are studying, so I am not going to repeat this thing or else you will lose the time. Next is primary and secondary amines capable of forming hydrogen bond with each other. So if hydrogen bond is formed, so you understand what about the polarity, okay? So I am not going to tell you that ये पानी के साथ soluble होगा या नहीं. You can understand that one. Tertiary amine cannot form hydrogen bond with each other to give primary the relatively high boiling point in their molecular. So primary, secondary and tertiary, which is having the more boiling point, that is your primary and secondary amine, because they are going to form the what no hydrogen bonding. So ये याद रखना है आपको one thing. Next is your, let's see what is there. So see a comparison of the boiling point of trimethylamine and N-propylamine. So see which have the same molecular weight, the effect of hydrogen bonding. You see बेटा आप देखो ये दोनों का बोल रहा है कि what is that ना, molecular weight is same, okay? 3 methyl, here also 3 alkyl is there, amine is there, right? But see boiling point is much more, 48.7, here 2.9 degree. So why this is happening? Because it is not forming hydrogen bonding. NH2 is freely available, so it is going to form the hydrogen bonding. That's why, okay? So please remember this one, okay? So why it is having? So tertiary का boiling point हमेशा क्या रहेगा? कम रहेगा, और प्राइमरी और सेकेंडरी का ज़्यादा रहेगा. क्यों रहता है? I make you understand. Next comparison is you see a compare boiling ethylamine and propane, which have similar molecular weight, effect of hydrogen bonding. See propane, you see propane is a gas, no? आप जानते हो ना propane boiling point minus 42 degree mean it's gas. So now you see your amine, ethyl amine, same molecular weight, it is having boiling point of plus 70 degree because it is forming the hydrogen bonding. That's why please remember this one, okay? Next, so all amines including tertiary amines are capable of forming hydrogen bond with water. वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड टर्शियरी अमीन भी कर सकता है, बट खुद के साथ नहीं कर सकता है, ओके? सो लो मोलिकुलर वेट amines आर water soluble. Please remember, low molecules amines are water soluble, okay? So this is the physical property we have studied. So what we have studied, physical property, how the boiling point is changing, okay, with respect to the molecular weight. ब्रांचिंग भी हो जाए तो बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, मैंने आपको ये बताया है, जो कि ये भी प्रूव कर रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ पे नहीं होता है. बट अगर लीनियर चेन हो तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा एज कम्पेयर टू दूसरा. अल्केन दे हैव गिवन वन एग्जाम्पल, आपने देखा अल्केन एंड अमीन का दोनों मॉलिक्यूलर वेट सेम होने से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? जिसका जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है बेटा उसका ही ज़्यादा होगा. यू नो दिस, ओके? So these two things we have understand. And regarding the solubility, lower amines are water soluble. That's it. यहाँ से और क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकेगा. Next is basicity. Amines are basic. So before going to basic, so you must understand what is base. Who is a base? Base किसको बोला जाता है ना? As per your what is that? ABC theory, LBC, Arrhenius, Bronsted-Lowry and Lewis theory. Lewis तो यहाँ पे applicable नहीं होगा, ब्रॉन्स्टेड और आरएनएस हो सकता है. आरएनएस क्या बोला था ना, जो H+ देता है उसको एसिड बोलता है, जो OH- देता है उसको भी एसिड बेस बोलते हैं, राइट? बट ब्रॉन्स्टेड क्या बोलता है, जो H+ देता है उसको एसिड, जो H+ लेता है उसको बेस. सो यू सी आमीन्स में क्या रहता है ना बेटा, आमीन्स में बेसिकली NH2 ये आमीन होता है ना, तो R पे जो लोन पेयर रहता है ना, ये लोन पेयर के पास कैपेसिटी होता है, लोन पेयर आर इलेक्ट्रॉन्स नो नेगेटिवली चार्ज, तो ये क्या करता है ना, पॉजिटिवली चार्ज को अपना अटैक कर सकते हैं, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, दैट मीन, राइट? तो आप जब कोई एसिड दोगे, कोई भी चीज़ दोगे, तुरंत ही ये फटाक से रिएक्ट कर लेगा. सो दैट्स वाई ही इज एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन, दैट्स वाई इट इज नोन एज बेस. एज पर what is that Lowry and Bronsted theory,
this is known as your base. Please remember this one, okay? So why it is a base, you understand? Amines are basic in nature. This is because onset pair of electron on nitrogen, electron is available for formation of new bond with proton. समझ में आया या नहीं है? देखो इलेक्ट्रॉन उसने खाया है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो ये H+ को खींच लेता है और ये बना देता है सॉल्ट, तो इसीलिए उसको अमीन्स को बेसिक बोलते हैं। ये हमेशा याद रखना, ये MCQ में भी आ सकता है आपका। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट हम जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने पढ़ा था pKa, वैसे ही एक पैरामीटर यहाँ पे भी होता है बेस का, दैट इज नोन एज योर बेसिसिटी कांस्टेंट। स्ट्रॉन्ग बेस किसको बोलते हैं? जो कि कंप्लीट आयोनाइज करता है उसको स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। वीक बेस जो लेस आयोनाइज करता है उसको वीक बेस बोलते हैं। ओके, so they are only partial, तो ये आप जानते हो, so I am not going to, so like this pKb is equal to anti-logarithm of Kb. So the basicity constant describes the relative strength of weak base. Stronger base having the higher Kb value, like stronger acid is having high Ka value. You understand? जिसका Ka ज़्यादा होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और जिसका Kb जितना ज़्यादा होता है वो उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बट उसका पीके भी उसका उल्टा होगा, घटेगा। वी हैव डिस्कस दिस वन, ओके। सो सी, सो ये होता है। नेक्स्ट वी स्टडी द रिलेटिव बेसिसिटी, इससे एमसीक्यू आने का चांसेस है, ओके। तो प्लीज दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, जस्ट रीड केयरफुली। सो व्हाट इज दैट ना? एलिफेटिक amines आर स्ट्रॉन्गर बेस देन अमोनिया। व्हाई? रीअरेंज, सी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा, रीअरेंज दिस 4 थिंग्स एज पर देयर बेसिसिटी, इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। सो हाउ यू आर गोइंग टू अरेंज दिस, दैट थिंग यू मस्ट रिमेंबर प्लीज, ओके। सो सी, ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग अल्काइल ग्रुप, ग्रेटर द अवेलेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन लोन पेयर टू द स्ट्रॉन्ग बेस। तो देखो बेटा, हम क्या आपको समझाएंगे, मैं जैसा समझाऊंगा ऐसा याद रखना। NH3, दिस इज अमोनिया, तो वेदर इट इज ए स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। देखो, तो देखो हमको क्या डील करना है एज पर द लोरी ब्रॉन्स्टेड की, इसको हम अगर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये ज़्यादा, जो जितना फास्ट क्या कर रहा है ना, H+ को रिसीव करेगा। H+ इज ए पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज। हम अगर ऐसा कुछ ग्रुप लगाएंगे जो कि NH3 को इलेक्ट्रॉन और दे, यू अंडरस्टैंड? अमोनिया इज देयर, ही इज बेसिक, बट कितना बेसिक एज कम्पेयर टू मिथाइलामिन, डाइमिथाइलामिन, ट्राइमिथाइलामिन, हु वुड बी द मोर बेसिक? ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन नहीं है कि कौन बेस है, यहाँ पे क्वेश्चन है हु इज मोर बेसिक, अमोनिया, मिथाइलामिन, डाइमिथाइलामिन, ट्राइमिथाइलामिन। तो सी दे हैव गिवन द पीके वैल्यू, तो पीके से भी आप इसको कन्फर्म कर सकते हो। तो लेट मी टेल यू, तो पीके भी क्या बोलता है, जिसका जितना कम पीके भी वो इतना ज़्यादा बेस। अंडरस्टैंड? पीकेबी का क्या होता है ना, उल्टा फंडा होता है, जिसका जितना कम पीकेबी वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस। तो आप अगर देखोगे पीकेबी किसका कम है, जहाँ यहाँ पे 3.267, दैट मीन दिस इज द फर्स्ट, देन दिस इज द सेकेंड, दिस इज द थर्ड, दिस इज द फोर्थ, ओके। रीअरेंजमेंट ऐसा होगा। अगर पीकेबी नहीं है, आपको मैंने अगर नाम दे दिया है, तो आप ये कैसा पहचानोगे कि कौन ज़्यादा सबसे स्ट्रॉन्ग, 1 2 3 4? तो देखो बेटा, आप समझो, तो सबसे कम कौन होगा ना, अमोनिया होगा, क्योंकि अमोनिया के पास जितना इलेक्ट्रॉन है उतना है। मगर हमने यहाँ पे क्या किया ना, अमीन्स है उसमें एक CH3 लगाया, तो CH3 क्या होता है ना, +I इफेक्ट दिखाता है। व्हाट इफेक्ट? +I इफेक्ट, दैट इज सिग्मा इलेक्ट्रॉन। मतलब CH3 के पास ना सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, ये इसको दे देता है, क्या देता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। एक CH3 था तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन दिया यहाँ पे, ओके। हाँ, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या होता है मैं पहले फिर से बताता हूँ आपको, नहीं तो नहीं समझोगे, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट इज, आप अगर बेसिक नहीं जानते हो तो कुछ नहीं समझ सकोगे बेटा, ओके। क्योंकि आपको यहाँ पे साइमल्टेनियसली मुझे ना आपको +I इफेक्ट के बारे में बताना जरूरी है। सी, सो व्हाट इज दैट ना, +I इफेक्ट टेलिंग रिगार्डिंग द सिग्मा इलेक्ट्रॉन। सो सी, इसके पास तो पहले से इलेक्ट्रॉन है, यू नो, दैट इज बेसिक, एग्री। बट हम क्या करेंगे ना, अभी इसको और पैसा देंगे, पैसा देंगे मतलब इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे। कौन सा इलेक्ट्रॉन ना, यू नो दैट सिंगल बॉन्ड इज हैविंग सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, सो हियर 3 सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, आप देख रहे हो ना, 1 मिथाइल इज हैविंग 3 सिग्मा इलेक्ट्रॉन,
सो और 3 इलेक्ट्रॉन उसको दे रहे हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा होगा तो H+ जब दिखेगा तो कौन पहले खींचेगा, NH3 पहले खींचेगा या ये पहले खींचेगा, बताओ आप। इसके पास तो पहले जितना था उतना है, मगर यहाँ पे हमने एक ऐसा चीज़ जोड़ दिया है जो कि 3 सिग्मा इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़ गया है ज़्यादा। 3 सिग्मा प्लस लोन पेयर, यहाँ पे ओनली लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन किसके पास ज़्यादा है, इसके पास ज़्यादा है, तो H+ पहले किसके पास जाएगा ना, इसके पास जाएगा। प्लीज़ रिमेंबर दिस वन, ओके। तो सेम वे नो इफ़ यू सी, यहाँ पे देख लो नेक्स्ट एग्जाम्पल 3.27 का देखो। तो 3.27 में क्या होता है, देखो इसके पास तो लोन पेयर था, इधर H है, ओके, ये लोन पेयर है, ओके। फिर यहाँ पे CH, ओके, ये देखो इसको समझो, हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम पॉइंट व्यू। यहाँ पे भी 3 ऐसा है, ओके, CH। तो यहाँ पे 3 सिग्मा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 3 सिग्मा और इसका लोन पेयर, तो कितना हो गया, मतलब 2 सिग्मा प्लस सिग्मा सिग्मा। तो अब बताओ NH3 ज़्यादा बेसिक, CH3NH2 ज़्यादा बेसिक है, ये बेसिक, तो खुद समझ रहे हो भैया। वहाँ पे 1 से 3 सिग्मा प्लस, इसमें 3 सिग्मा प्लस लोन पेयर, यहाँ पे 6 सिग्मा प्लस लोन पेयर। व्हाट इज दैट, 6 सिग्मा प्लस लोन पेयर। लेट मी राइट डाउन, हाँ, यहाँ पे ओनली लोन पेयर, यहाँ पे व्हाट इज दिस, ओनली लोन पेयर। यहाँ पे क्या था, 3 सिग्मा इलेक्ट्रॉन प्लस लोन पेयर, यहाँ पे 6 सिग्मा प्लस लोन पेयर, यहाँ पे 9 सिग्मा प्लस लोन पेयर, राइट। तो इनमें से कौन ज़्यादा योर बेसिक होगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट वन, ओके। तो द मोस्ट बेसिक थिंग इज दैट, तो आप बताओगे सर इसके पास क्योंकि ज़्यादा सिग्मा इलेक्ट्रॉन है, तो ज़्यादा सिग्मा इलेक्ट्रॉन है मतलब क्या ये ज़्यादा बेसिक होगा, नो। मगर इनमें से देखो 3 सिग्मा एंड 6 सिग्मा, दिस वन इज मोर बेसिक, ओके। मगर यहाँ पे वैल्यू देखो घट गया, क्यों, दिस इज ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। प्लीज रिमेंबर दिस इज ड्यू टू द स्टेरिक हिंड्रेंस। देख रहे हो ना स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, मैंने आपको बताया है बेटा आपको। तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया है आपको कि ये जो देखो ये जो नाइट्रोजन है ऐसा ऐसा करके तो होगा ना बेटा, ये तो 3 फाड़ के तो नहीं है, ऐसा 3 CH3 राइट। तो ये अगर और अमोनिया का HH, ओके, मान लो तो CH3, एक साथ तो मैं 3 चीज़ नहीं लिख सक रहा हूँ, सो यू कांट फील इट, नो बेटा, हाँ। तो देखो ये आप बताओ मुझे, यहाँ पे हाइड्रोजन को घुसने के लिए ना जगह नहीं मिलता, यू अंडरस्टैंड, रिएक्ट करने, क्योंकि इसका साइज बड़ा हो जाता है। जैसे कि ये साइज बढ़ेगा तो ये उसके यहाँ पे एंटर करने के लिए जगह नहीं होता है, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस नो, इसका बेसिसिटी घट जाता है। इसके पास 9 सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हुए भी ये लेस बेसिक हो जाता है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। बट इसके पास 6 सिग्मा इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी ये ज़्यादा क्या होता है ना, बेसिक होता है। क्यों होता है ना, इसमें थोड़ा सा स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो जाता है कि एंट्री करने के लिए चांस मिल जाता है, समझ में आया ना, हाँ। तो ये उसका पॉजिटिव पार्ट है। तो बेटा तो क्या होगा पहले, तो आपको ये देखना है, सो दिस वन इज मोर बेसिक, देन कौन आएगा, ये आएगा, देन आपका ये आएगा, देन ये आएगा। प्लीज रिमेंबर दिस वन। सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। इफ एनी क्वेरी इज देयर अगेन आस्क मी, आई विल आंसर दिस, ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट, सो आप ये देख लेना, amines are basic. Basicity of amine is due to presence of lone pair of electron on nitrogen, electron releasing groups. So what I said, EDG, ये याद रखना, कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर हो, मतलब अमोनिया के साथ मान लो OH लगा है, क्या लगा है, OH के पास भी इलेक्ट्रॉन देने का कैपेसिटी है ना बेटा, तो ये क्या होगा, ये क्या करेगा ना, बेसिसिटी को बढ़ाएगा। अगर मान लो हम क्या कर रहे हैं ना, अभी हम यहाँ पे OH के जगह पे ना क्या लगाएंगे ना बेटा, हमने NO2 डाल देंगे। NO2 क्या होता है ना बेटा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, तो बेसिसिटी घट जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप ये याद रखना है, -I इफेक्ट क्या करेगा बेटा आपका, हाँ। तो H जो होता है -I इफेक्ट होता है, और कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाओगे तो बेसिसिटी घट जाएगा। ये amines आर मोर बेसिक देन अमोनिया, ये जान लिया क्यों।
So any factors which reduce the ability of lone pair of electron or nitrogen reduce the basicity of amine. Lone pair more available, more basic. Lone pair less available, less basic. This is the panda. So please remember this one. I believe you can do this. Okay? Any question? Please ping me. केमिकल प्रॉपर्टी देखो बेटा, फास्ट केमिकल कोई जो सॉल्ट फॉर्मेशन मैंने बताया कि लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन है, HCl दोगे तो सॉल्ट बन जाएगा, दैट्स व्हाई इट इज बेसिक. ओके, कोई पूछेगा तो ये भी बोल दोगे कि ये सॉल्ट बनाता है, एसिड के तो बेस में अगर एसिड डाल दे तो सॉल्ट बनता है, इसीलिए इसको बोला जाता है. ओके, नेक्स्ट विल सी रिएक्शन विथ अल्किल हैलाइड. सो बेटा ये भी हमने देख लिया कि फर्स्ट व्हाट नो आमीन्स में अगर RX ऐड कर देंगे तो प्राइमरी आमीन में सेकेंडरी आमीन बनेगा, फिर टर्शियरी आमीन बनेगा, फिर क्वाटरनरी आमीन सॉल्ट बन जाता है. सो दैट इज अ प्रॉपर्टी. ओके, एसिड क्लोराइड व्हेन यू रिएक्ट मिथाइल आमीन विथ एसिड क्लोराइड. ओके, तो क्या करेगा ना, इसके पास जो लोन पेयर होता है ये सीधा यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ से Cl और यहाँ से H निकल जाएगा और ये अमाइड बन जाता है. तो CONH इज योर अमाइड बॉन्ड. प्लीज रिमेंबर दिस. ओके, तो ये उसका मैकेनिज्म दिया है, दैट इज सिंपल. तो जैसे कि आप जानते हो कि ईस्टर के साथ अगर हम एसिड के साथ आमीन करेंगे कोई कपलिंग एजेंट तो अमाइड बनता है. जैसे कि ईस्टर के साथ भी अगर हम आमीन को रिएक्ट करेंगे तो भी अमाइड बनता है. उसी तरह से एसिटाइल क्लोराइड के साथ भी अगर हम आमीन रिएक्ट करवाएंगे so also you are going to form the amide. So this is the MCQ कि मैंने एसिटाइल क्लोराइड को इसके साथ रिएक्ट किया तो व्हाट इज योर प्रोडक्ट. ओके, अमीन, अल्कोहल, अल्केन, अल्किल हैलाइड, ऐसा 4 ऑप्शन दूंगा, आपको टिक करना है. ओके, अमाइड बनेगा, अमीन बनेगा, क्या बनेगा ये आपको सिलेक्ट करना है. तो जो जानता है वो लिख सकेगा. So this is also most important that nitrous acid. So अमीन में दिस इज नोन एज योर कार्बाइल अमीन टेस्ट. व्हाट इज दिस? तो अमीन का एक पिक्युलरिटी टेस्ट है. वन इज हिंसबर्ग रिएजेंट, हॉफमैन डिग्रेडेशन, अनदर वन इज कार्बामाइल रिएक्शन. सो दैट इज नथिंग बट NaNO2 HCl में आप अगर रिएक्ट करोगे तो इट इज इन सिटू फॉर्म क्या करता है ना, HONO2 क्या करता है ना, नाइट्रस एसिड बनता है. दिस इज ए अनस्टेबल सब्सटेंस, इसीलिए मार्केट में ये अवेलेबल नहीं होता. ये रिएक्शन करके आपको खुद से बनाना पड़ता है. दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू प्रिपेयर. NaNO2 HCl से दोगे तो ये बनता है. ओके, तो ये 0 डिग्री आइस दे के बनाना पड़ता है. तो प्राइमरी अमीन में जब HNO2 रिएक्ट करेगा तो इट इज गोइंग टू फॉर्म अल्कोहल. तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना MCQ के लिए. प्राइमरी अमीन मैंने दिया और मैंने उसको किसके साथ रिएक्ट किया ना, नाइट्रस एसिड के साथ और NaNO2 HCl में. तो क्या बनेगा बेटा, ROH बनेगा. और क्या लिबरेटेड होगा ना, N2 लिबरेटेड होगा. इट इज ए प्राइमरी अमीन. ये याद रखना है MCQ में. प्राइमरी अमीन व्हेन रिएक्ट विथ योर HNO2 व्हिच गैस इज लिबरेटेड, CO, CO2, N2. तो दैट इज नाइट्रोजन. ओके, ये एक MCQ है. और एक MCQ आपको कोई पूछ सकता है कि प्राइमरी अमीन HNO2 के साथ रिएक्ट किया तो क्या प्रोडक्ट बनता है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, दैट इज अल्कोहल. ओके, नेक्स्ट विल गो, दिस आर योर MCQ. ओके, दिस आर योर MCQ, प्लीज रिमेंबर. हाँ, तो नेक्स्ट इज योर सेम सेकेंडरी अमीन. सेकेंडरी अमीन व्हेन रिएक्ट्स विथ HNO2 तो व्हाट वुड बी योर प्रोडक्ट बेटा. सो सी सेकेंडरी अमीन जब रिएक्ट करेगा तो नाइट्रोसोअमीन इट विल फॉर्म ए लिक्विड कंपाउंड. प्लीज रिमेंबर. ओके, सेकेंडरी रिएक्ट विथ नाइट्रोजन फॉर्म विच इज वाटर इनसॉल्युबल येलो ऑयल. ओके, तो ये आपको याद रखना है. ओके, तो इट इज फॉर्म ए येलो ऑयल, हाँ, लिक्विड कंपाउंड बनाता है. ओके, हाँ, तो बट प्राइमरी अमीन रिएक्ट करता है तो अल्कोहल बनाता है. ये आपको याद रखना है, प्लीज रिमेंबर. ओके, एंड सेकेंडरी अमीन रिएक्ट करता है तो नाइट्रोसोअमीन बनाता है, एंड नाइट्रोसोअमीन. प्लीज रिमेंबर. ओके, नेक्स्ट इज योर टर्शियरी अमीन. तो टर्शियरी अमीन जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म ए सॉल्ट, ट्राइअल्किल अमोनियम नाइट्रेट सॉल्ट. दैट इज वाटर सॉल्युबल, दैट इज सॉल्युबल इन वाटर. ओके, तो ये याद रखना है, सेकेंडरी वाला वाटर सॉल्युबल नहीं होता है. ओके, ये आपको याद रखना है. हाँ, एंड प्राइमरी जो बनेगा ये तो इथेनॉल मतलब वाटर सॉल्युबल होता है, आपको समझ में आ गया. एंड प्राइमरी में क्या होता है ना, बबलिंग करता है. बबलिंग मतलब
नाइट्रोजन गैस निकलेगा, तो आप समझ सकते हो कि ये प्राइमरी अमीन है। एंड सेकेंडरी में क्या होता है मैंने आपको बता दिया। ओके, दिस इज ऑल्सो नोन एज nitrous acid test. Okay, you please remember. So this is the basic points to be remember. Primary amine reaction to produce nitrogen gas. Okay, अल्कोहल बनता है, नाइट्रोजन टू प्रोड्यूस येलो लेयर दैट इज इनसॉल्युबल होता है, नाइट्रोजन टू फॉर्म सॉल्युबल नाइट्रेट सॉल्ट दैट इज नो विजिबल साइन ऑफ रिएक्शन. ओके, डन फॉर दिस. Then reaction with benzene sulfonyl chloride. Benzene sulfonyl chloride obtained by reaction of benzene sulfonyl chloride. So what is this reagent beta? This is your Hinsberg reagent. This talking regarding Hinsberg reagent already discussed. We have discussed. प्राइमरी अमीन बेंजीन के साथ रिएक्ट करता है तो एक सॉलिड कंपाउंड प्रेसिपिटेट बनता है. ओके, फिर आप अगर इसके साथ NaOH ऐड करोगे तो ये सॉल्ट बन जाएगा और सॉल्युबल हो जाएगा. ये तो मैंने आपको बता दिया. सेकेंडरी अमीन फिर उसी तरह से अगर रिएक्ट करोगे आपका हिंसबर्ग रिएजेंट. ओके, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे NN डाइअल्काइल बेंजीन सल्फोनाइड, यहाँ पे N अल्काइल, यहाँ पे N के साथ 2, तो दैट इज सेकेंडरी ना. प्राइमरी का तरह होता है, ये भी सेकेंडरी का तरह बन रहा है. ओके, तो ये भी एक प्रेसिपिटेट बनता है. ओके, और इसमें अगर आप क्या करोगे, अभी NaOH ऐड करोगे तो ये क्या होगा, वाटर सॉल्युबल नहीं होगा. दैट्स इट, वी अंडरस्टैंड. एंड टर्शियरी अमीन क्या होता है, वो प्लेस ही नहीं होता है. HCl कैसा निकलेगा, यहाँ पे तो H ही नहीं होगा तो HCl निकलेगा कैसा टर्शियरी में. टर्शियरी मतलब यहाँ पे R होता है इन प्लेस ऑफ H, राइट. तो रिएक्शन ही नहीं होता. ओके बेटा, समझ गए आप लोग तो आई थिंक. तो दिस इज विच काइंड ऑफ रिएक्शन, हिंसबर्ग रिएक्शन हमने पढ़ लिया पहले से. तो ये हो गया आपका आई बिलीव. तो इसका हम सार देखते हैं. तो व्हाट इज द summary for this. So this is, I said that this is the Hinsberg reagent. So primary amine reacts with benzene to form precipitate soluble in NaOH. Secondary benzene salt to get precipitate not soluble in NaOH. Tertiary में does not react. Okay, मैंने आपको कार्बाइल अमीन की रिएक्शन बता दिया बेटा कि प्राइमरी अमीन when reacts with CaCl3KOH it is forming an isocyanide. Okay, please remember this one. The primary amine when reacts with KOH, so KCl3 it is forming an isocyanide. And tertiary, secondary and tertiary don't give any reaction. Please remember this one. Sorry that I said you that this thing as your HONO2 as your कार्बाइल अमीन test. No, this is not कार्बाइल अमीन test. This is the nitrous test. Please remember. No? Sorry, I misconcept. That was a right positive. Okay, कार्बाइल अमीन test is with कार्बाइल अमीन reaction. What is the primary अमीन? अगर रिएक्ट करता है क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ तो ये बनता है आइसोसाइनाइड. बट सेकेंडरी एंड टर्शियरी ये रिएक्ट नहीं कर सकते हैं. तो ये आपको याद रखना है. तो आइसोसाइनाइड और कार्बन एबिलिटी बहुत बुरा स्मेल करता है डिटेक्टर. दिस रिएक्शन यूज्ड टू प्राइमरी अमीन एंड सेकेंडरी एंड टर्शियरी. दिस इज आल्सो वन अमीन कार्बाइल अमीन टेस्ट which we can differentiate primary, secondary and tertiary. Please remember that. And one more test is there, carbon disulfide. So primary amine reacts with carbon forming dithiocarbonate equal to mercury chloride with the corresponding isomer. So this is one and one RNH2 CH2 read the reaction. So this kind of compound is not much important for you guys. तो आप यहाँ पे क्या याद रखना है ना, कार्बाइल अमीन रिएक्शन, then comes your nitrous acid, then comes your sulfonate. These are the most important things for your MCQ. Please remember. आप बोलोगे कहाँ से पूछेगा, क्या पूछेगा, मैंने खुद ही बता दिया आपको. ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे मिथाइल अमीन. मिथाइल अमीन कैसा, ये कौन सा रिएक्शन देखो मैंने बताया था. दिस इज नोन एज हॉफमैन डिग्रेडेशन. मुझे लेबोरेटरी मेथड से प्रिपेयर मिथाइल अमीन. तो अमाइड से हम अमीन बनाते हैं यूजिंग DRN. दिस इज योर हॉफमैन डिग्रेडेशन. ये जान लेना. और यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे 2 कार्बन था, यहाँ पे 1 कार्बन, राइट. ये आपको थोड़ा ध्यान देना. Nothing again, same things are there with us. Okay.
बट ये आपके लिए नहीं इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको बता दिया। ओके, तो in order to remember for this, तो these are not for your part of exam, तो मैंने आपको बता दिया कौन सा इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, आप समझ गए होंगे, मैंने खुद ही बता दिया आपको सब कुछ। ओके, तो यू सी हाउ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट इथाइलामाइन टू मिथाइलामाइन। तो HONO2 दिया तो क्या प्रोडक्ट बन रहा है, मैंने बताया था अल्कोहल बनता है। अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करो तो क्या बन जाएगा ना, एसिड बन गया। एसिड को SOCl दो तो COCl बन गया। आमीन डालो तो क्या बन गया बेटा, अमाइड बन गया। अमाइड टू दिस, इसको क्या बोलते हैं, कौन सा नेम रिएक्शन बेटा, दिस इज फॉक्स में डिग्रेडेशन। तो ये कार्बोनिल यहाँ पे हट जाएगा तो मिथाइलामाइन बन जाएगा। इथाइलामाइन से मिथाइलामाइन कैसा बना, 5 मार्क क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो ऐसे ही हम देखेंगे और एक एग्जाम्पल में मिथाइल से इथाइल कैसा बढ़ाएंगे अभी। ठीक है, तो लेट्स सी, तो घटाने वाला मिथाइलामाइन से HONO2 दे दिया तो अल्कोहल बन गया। तो नाउ ट्रीटमेंट SOCl टू CH3Cl अल्किल हैलाइड, अगेन NaCl तो बन गया CH3Cl। अब रिडक्शन कर दो, बन गया ना CH3Cl मतलब CH3CH2 NH2। ठीक है, तो ये सब सीखने का चीज़ है। ठीक है, तो लेट्स राइट सम MCQs फॉर यू गाइस। ओके, तो ये तो हो गया आपका थ्योरी पार्ट, तो मैं यहाँ पे स्टॉप कर देता हूँ, आधा घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वीडियो। और MCQ हम देखेंगे बेटा